AD है। Good morning to you all, beta. Very good morning to you all, rather. Welcome you all in this class today. Hope you are all well and studying with your high spirits today. So we are having our period after almost a week. I hope you might have revised all the things in a nice manner, beta. Yes, ma'am. लगा हुआ है ए भी नहीं है, ए भी आ रही है इधर इधर भेज दो आप इनको मैं ओके कितने बच्चे हैं कितने हैं भेज दो मैम इसमें क्या है आ जाओ बच्चों नो प्रॉब्लम बेटे डियर ऑल कम प्लीज सिट बेटा इधर बैठ जाइए नो प्रॉब्लम बेटा कम बेटे काइंडली कम आइए बेटे वेलकम यू कैन सिट हैव आफ्टर मेंटेनिंग ए प्रॉपर डिस्टेंस आइए गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा बेटे डोर क्लोज करो कम बेटा So, beta, check up to which topic we have completed last time, beta. Please check up to which topic we have completed last time, beta. Sir. Good morning, sir. Good morning to all, beta. Good morning, sir. Very good morning to you all. Mute yourself, beta, all. Okay, sir. Otherwise, there will be a lot of disturbance, beta. Numericals on the kinetic energy we have completed. Yes, beta, this was the topic covered. We have completed, na beta? Kinetic energy we have completed. Formula half mv square derived. And I think we have also discussed with the momentum in relation to that. बीच में रह गया था कोई बात नहीं बेटे आइए देखें यू कैन राइट डाउन द हेडिंग बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बेटे so let us beta dear children have the relationship between kinetic energy and momentum of an object beta now beta regarding the term kinetic energy you have already derived that kinetic energy is equal to 1 by 2 into mass into square of the velocity. No doubt about this, beta. Now, beta, if I just multiply any numerical value, any formula with 1, I don't think there will be any change in the result. Suppose we have a number 50. We multiply 50 by 1, the result will be 50 itself. And suppose we have this kinetic energy half mv square and yes, and we multiply this by 1 beta, there will be no change in the result beta. So that is why I am just multiplying this equation by 1.
Beti, I have another way to multiply the right hand side by 1. This is 1 by 2 mv square. This 1, I can write it as mass divided by mass, because mass will get cancelled with mass. This will be just 1 beta. When we will be multiplying it by 1, so there will be no change at all in the result. So this 1 can be replaced by m over m beta. Why m over m? Because I need m over here in order to make the formula in terms of the momentum. Now beta, when this mass will get multiplied by this mass, I will be having it to be equal to 1 by 2 ये mass का square divided by square of the velocity. In the denominator, this mass m will be as such. Now beta, this right hand side can also be written that 1 by 2 m into v, complete square of this term can be written beta, divided by m as such beta. M into v, the product of mass and velocity. This is nothing but our linear momentum. You all know that momentum P, this is the product of the mass and the velocity, no beta? So in place of this mv, I can write P. So I will be having this to be equal to 1 by 2 P square upon m beta. And beta, dear students, energy, rather the kinetic energy on the left hand side, this can be then 1 by 2 into p square upon m, or you can say E, this is equal to p square upon 2m, or still you can say that this 2m is taken to the left hand side, p square, this is equal to 2 into m into E, or beta p, that is equal to square root of 2 into m into E beta. So in this manner, you can relate momentum and kinetic energy. Any doubt, beta? Is it all clear now, beta? To all? Let us proceed further then, beta. I have with me principle of conservation of energy, beta. But before that, beta, one term still left with me, that is beta my potential energy. Let us discuss that first of all, beta. Potential energy. Potential energy, beta. Beta, imagine the situation that we lift an object from the surface of Earth up to some height h. We have to perform some work. We have to do some work. Supposingly, you are having your school bag with you. You pick your school bag from the desk up to some height, beta. So you all are involved in doing some work. But where that work is going, or where that work done is getting stored, beta. Beta, the work you are performing in lifting your bag in the upward direction, that will be stored in the form of its potential energy. The height up to which you have shifted your bag, if you leave that bag at that height, it automatically will drop down. What will happen? The potential energy will change into its kinetic energy and it will come down. So dear children, beta, when you talk about lifting any object from the surface of the earth up to some height, beta, you do some work, and that work done is stored in the form of beta potential energy. There is second form also. Imagine you are given a spring. What we do, we elongate that spring. We stretch that spring. But when we stretch the spring, then what happens? We do some work in stretching the spring. And what then outcome is there, or what result is there, beta? That spring that possesses some sort of energy at the cost of the work we have done. We have done the work in order to stretch it, and that work done is stored in the form of the potential energy in the spring. So, beta, potential energy, it may be due to height,
It may be due to the configuration or the size. Configuration or size, what does it mean? Spring was having this much original size, we elongated it, we have changed its size, we have changed its configuration. So that's why beta we say that this may be due to the size or the configuration also. एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा. You can well imagine about a watch, रिस्ट वॉच. आपको याद होगा हम उसको चाबी दिया करते हैं, ऐसे चाबी देने के बाद उसकी जो नीडल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग, और जब वो रुक जाती हैं वी से दैट वी अगेन नीड टू हैव इट्स की रोटेटेड. वो चाबी देने से क्या होता है बेटा, आपके घड़ी के अंदर एक बेटे इस तरीके का स्प्रिंग लगा रहता है, इस तरीके का, और आप क्या करते हो, इस स्प्रिंग को बेटा आप वाइंड अप कर देते हो. Spiral spring, this is called, this is a spiral spring. जब आप wind up कर देते हो, a lot of energy is stored in this spiral spring. फिर what happens बेटा, धीरे धीरे with the passage of time ये spring unwind होता रहता है और आपकी घड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. जब ये completely unwind हो जाएगा, then your watch will stop बेटा. So this is due to the configuration of the spring. दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दिया था कि ये एक स्प्रिंग है, आप इसको पकड़कर स्ट्रेच कर दीजिए, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा. तीसरी बात हमने क्या की थी कि ये ग्राउंड लेवल है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लिफ्ट किया, लिफ्ट करके आपने इसको h हाइट के ऊपर एडजस्ट कर दिया, देन अगेन बेटे इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी. सो बेटे डियर चिल्ड्रन, फिर पोटेंशियल एनर्जी चीज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसी भी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है, दैट मे बी ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स साइज और कॉन्फ़िगरेशन. सो बेटे लेट अस हैव द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी. बेटा हाउ आई कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? बेटे आई कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा, it is defined as, let us have the definition beta. Potential energy of an object is defined as the energy possessed by an object, energy possessed by an object by virtue of its position or configuration. बेटा position or configuration. बेटे डियर चिल्ड्रन, दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू द पोजीशन. आपने पोजीशन चेंज कर दिया, उठाकर हाइट पे रख दिया, एंड दीज टू एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन. बेटे क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को डियर? नाउ बेटे लेट मी डिराइव द फार्मूला फॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी. बेटे लेट अस डिस्कस दिस फार्मूला. बेटे इमेजिन दैट बेटे दिस इज माय ग्राउंड लेवल and I place an object on the ground level having mass small m. आप अपने स्कूल बैग का एग्जांपल ले सकते हो कि ग्राउंड पे पड़ा है. The force acting on the bag or the object in the vertically downward direction, that is equal to its weight. beta weight we have discussed to be equal to m into g. beta every object on the surface of the earth is attracted towards the center of the earth with this much force. weight एक फोर्स ही है ना बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F is equal to m into g in the vertically downward direction. Now beta what more I can do is that beta I want to lift this object up to some height h. Imagine this is the level where I want to place this object and it is at a height h. I will pick this object in the upward direction. How I will pick? I will have to apply some force upward direction, and this force applied will make the object at this place beta. So you can well imagine that beta you have applied the force in the upward direction. पहली बात.
द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी बात बेटे, डिस्टेंस कवर्ड और फोर्स अप्लाइड, यू कैन सी दीज आर बोथ इन द upward direction or in the same direction. Now dear students, my work done that will be equal to the product of the force and the distance covered बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में ना होती तो हम cos थीटा वगैरह लिखते हैं ना साथ में, वो हमने नहीं लिखा because they are in the same direction. Now बेटे, this work done, it will be stored in the form of the potential energy. This is equal to F into S beta, or I can simply write it as energy E. F beta you already know to be equal to M into G. Distance covered S beta आपका H के बराबर है. So beta potential energy it is having a formula M, G and H beta. बड़े ही ध्यान से सुनेंगे फिर से बेटे एक बार, आपके ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी चीजों पे डिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो, अगर मास ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आप अगर बेटे 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट उठाकर हाइट पे रख रहे हो, दैट विल पोजेस लेस पोटेंशियल एनर्जी in comparison to an object having a mass of 10 किलोग्राम। फिर से ध्यान दो ना बेटा, आप मुझे बताइए कि 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाना मुश्किल होगा ना बेटे, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा और वही ज्यादा वर्क डन जो है दैट विल बी स्टोर्ड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड बेटे फैक्ट है, जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द हाइट आल्सो। कितनी हाइट तक आप अपना ऑब्जेक्ट उठा के लेके जा रहे हो। अगर कम हाइट तक लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, ज्यादा हाइट तक लेके जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द थर्ड फैक्टर। बेटे फ्यू किलोमीटर्स, मैं 100 या 500 या 1000 नहीं कह रहा हूँ, 5, 10, 12 किलोमीटर तक हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में जी की वैल्यू आ रही है वो प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं बदलती। मैं फिर से बेटे आपको बता दूं, फॉर ए हाइट ऑफ 5, 10, 12 और इवन अप टू 50 किलोमीटर देयर इज नो लार्ज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बेटा। तो जी आपका कांस्टेंट है, मैं इसको नहीं लिखता यहाँ पे, अदरवाइज ये जी पे डिपेंडेंट है। बेटे क्लियर हो गई बात सारे चिल्ड्रंस को बेटा? क्लियर बेटा? नाउ बेटे लेट अस डिस्कस अवर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये डेरिवेशन भी आती है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा आपको एग्जामिनेशंस में। लेट अस बेटे हैव, यू कैन राइट द हेडिंग बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटे डियर स्टूडेंट्स बेटा यू कैन राइट द हेडिंग principle of conservation of energy bete। Let us have this discussion, principle of conservation of energy। Let me have the statement part first of all beta। Principle of conservation of energy, it states that beta, it states that energy can neither be created nor destroyed, but can be converted from one form into another, one form into another। बेटे क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट बेटा सपोज यू हैव सम ऑब्जेक्ट विद यू, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल पोजेस दैट विल रिमेन सेम, बट ये जरूर है कि अगर वो ऑब्जेक्ट बेटे आप मूव करवा देते हैं
then there may be change in kinetic or potential energy of the object. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. Try to focus on this piece of chalk. When I drop this, first of all, I will be lifting it in the upward direction. I have to do some work. Here at this position, this piece of chalk is having only and only potential energy. I just leave this piece of chalk. It comes in the downward direction. As it is moving in the downward direction, its height is becoming less beta. Its potential energy is decreasing. And at the same time, its kinetic energy is also beta increasing. So I mean to say that beta पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा. टोटल एनर्जी आपकी इन दोनों के सम के बराबर है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के. सो वो आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इसका बेटे लेट अस ट्राई टू हैव द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट. बेटा आइए देखिए बेटे. बेटे समझ लग गया ना बच्चों को? क्लियर है सारा? चलिए बेटे प्रूफ इसका देखें. बेटे proof I will be doing it for a freely falling body. For a freely falling body, एक बॉडी है, आप उसको आपने उसको फ्रीली फॉल करवा दिया, उसके लिए हम इसका प्रूफ कर रहे हैं डिस्कस. Here imagine that beta this is the object, it is at a height h from the ground level. This is the height h और ये आपका ग्राउंड लेवल है, यू कैन इमेजिन. और हाइट ऑफ द ग्राउंड लेवल अप टू दिस पॉइंट एच है इस ऑब्जेक्ट का. यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप किया, छोड़ दिया जैसे मैंने चौक का पीस छोड़ा था, और इस पॉइंट को आप ए पॉइंट कह सकते हैं. इमेजिन दैट स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब आप इसको यहाँ से छोड़ोगे, ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा. इमेजिन दैट इट इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो बी पॉइंट पे तो अभी रुका हुआ तो नहीं था. जब ये आप ड्रॉप कर देते हैं, ये मूव कर रहा है नीचे को, ये बी पॉइंट है, रुकता तो नहीं, इट कीप्स ऑन मूविंग. इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है. ठीक है जी, बाकी हमें नहीं पता, लेकिन जीरो नहीं है. दिस इज द पॉइंट बी. और बेटे ऐसा भी नहीं है कि जब आपका ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करोगे इसका मास तो नहीं ना बदलेगा, वो तो वही रहेगा, मास विल रिमेन एज सच. इसके बाद मैं बेटे ये सी पॉइंट ले लेता हूं. ये सी पॉइंट जस्ट अबव द ग्राउंड, ए पिन की थिकनेस के बराबर के हाइट के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी डैश होगी, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन है. अब आइए ए बी और सी पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. अगर तो बराबर आएगी देन वी विल से दैट कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल राइट है, नहीं तो गलत है. क्लियर? आइए देखिए बेटा, एट पॉइंट ए, डियर चिल्ड्रन यू कैन राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट ए. बेटा एट ए पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी बच्चों, दिस इज total energy, TE I am writing it in short form. This is the sum of kinetic energy plus potential energy. बेटे kinetic energy, this is 1/2 mass into square of the velocity. जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो I have written the 0. And बेटे dear students, potential energy mg into h ही हमने अभी अभी निकाला है ना, so it will become mgh. then beta at point A total energy आपके सिस्टम का m into g into h के बराबर आ गया. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बेटे कह देता हूं. अब मैं B पॉइंट पे और C पॉइंट पे निकालूंगा. अगर तो इसके बराबर आ गया फिर हमारा प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आया फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना. लेट अस कंफर्म इट एट B now. इमेजिन दैट A से लेकर B तक जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, आपके ऑब्जेक्ट ने x के बराबर डिस्टेंस कवर किया A से B तक.
ए से जब नीचे आ गया ना बी तक, इट हैज कवर्ड ए डिस्टेंस x, तो बेटे बाकी कितना बचा ये? नहीं नहीं पुत्र, ये टोटल h है, x उसमें से ये इतना आ गया, तो ये कितना बचा? इट इज h माइनस x। बिल्कुल ठीक बेटा, दिस इज h। h आपका टोटल था, x बीच में से निकल गया, तो h माइनस x ही रह गया ना बेटा। नाइस। बी पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी है, हाइट भी है। इट विल मीन दैट कि बी पॉइंट पे ये काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इट विल आल्सो पोजेस विद इट। सो एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी, दिस इज 1/2 mv² प्लस m इंटू जी। हाइट कितना है अब? यस, दिस इज h माइनस x। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें v नहीं पता यहाँ पे, ये हमारी प्रॉब्लम है, v निकालना पड़ेगा। लेट अस अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है, b² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। वेरी नाइस। u आपका 0 है, a जब आपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया, दिस इज इक्वल टू g। फ्री फॉल में a g के बराबर ही होगा ना। और डिस्टेंस कितना मूव किया a से b तक? x। s is equal to x बेटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट इन दिस। I will have b² minus 0² 2 into x। बिल्कुल ठीक बेटे, g into x। तो 0 को छोड़ दो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। b² जो है इट विल बी 2gx बेटा। c I need b² ओनली ना बेटा, तो इसीलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, b² आपके पास एज सच पड़ा है। सो आइए अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये v² की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा। आई विल हैव 1/2 m इन प्लेस ऑफ v² आई एम हैविंग 2gx बेटे, और प्लस mg h माइनस x हो गया जी। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए बेटे। अब देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता है ना, देखना ही पड़ेगा। टोटल एनर्जी बन गया, ये देखो, ये 2 से 2 कट गया, mgx प्लस mg को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, mgh माइनस, वेरी राइट। तो यू कैन सी दिस तो गेटिंग कैंसल्ड विद दिस। टोटल एनर्जी वंस अगेन इज mg एंड h। तो देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, 1 के साथ मैच कर गई। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक 0। बी पे कितनी है? नॉन जीरो। डियर चिल्ड्रन, इट मींस दैट कि एज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, हो क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम, नो चेंज। आइए सी पॉइंट पे भी चेक करके देखें। देखें बेटा, चलिए देन लेट अस हैव सी पॉइंट एट पॉइंट सी बेटा। सी पॉइंट इज बेटे जस्ट अबव द ग्राउंड। ए पिन ड्रॉप, सॉरी, ए पिन की थिकनेस के बराबर के डिस्टेंस को आप प्रैक्टिकली तो 0 ही बोलोगे। एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी 1/2 m, वहां पे वेलोसिटी हमने v' बोला हुआ है, यू कैन सी, इसका स्क्वायर प्लस mg। हाइट कितना है सी पॉइंट का? 0। नाइस, तो 0 पुट कर देते हैं, वी विल हैव दिस बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, टोटल एनर्जी बन जाएगा 1/2 m इंटू v' का स्क्वायर। 0 को तो क्या लिखेंगे, अब हम नहीं लिखेंगे ना। अब v' स्क्वायर कैसे निकालें? अगेन थर्ड इक्वेशन। नाइस, b² माइनस u² 2s होता है। b आपका c पॉइंट पे v' के बराबर है, b की जगह आई विल बी राइटिंग v'। u आपका देखो 0 उत्तर, a आपका g, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? पूरी हाइट के बराबर हो गया। a से c तक h ही आ गया ना, इट विल बी h। इसमें पुट कर देते हैं। आइए देखें,
बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। दिस इज 2 G एंड H। जीरो को तो लिखेंगे नहीं हम बेटा, तो जीरो को रहने दीजिए। और यस, आई विल हैव V डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। यही चाहिए था हमें, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। लेट अस नाउ सब्स्टिट्यूट। क्यों बेटे, शुड वी डू कि रहने दें? कहता रहने दो सर। कर लें, ठीक है, गुड। हमारे हैं तो काम तो करना चाहिए ना। सो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। लेट अस पुट द वैल्यूज। टोटल एनर्जी 1/2m, कुछ नहीं कहा m को हमने ना, 1/2 को। V डैश की जगह पे आई विल राइट यस 2GH। ये कितना था, है ही नहीं, जीरो है, नहीं लिखेंगे। 2 कट गया। टोटल एनर्जी बेटा अगेन mgh। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दूं। वी शुड राइट वन लाइन इन द एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। लिख लीजिए बेटे, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। लिख ही देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3, comma, we conclude that total energy remains same. However, potential energy decreases and kinetic energy increases as the object comes down। बेटे सारे बच्चों को समझ लग गई बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? है ही आसान बेटे, थोड़ा मेहनत करते रहिए, यू विल फील नो प्रॉब्लम इन द एंड बेटा। शुड बी प्रोसीड अहेड। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिखवाऊंगा आपको, चले? लिख लीजिए देन। राइट डाउन बेटा, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास ऑफ 10 किलोग्राम, न्यूमेरिकल है छोटा सा डियर। एन ऑब्जेक्ट having a mass of 10 kilogram is dropped from a height of 50 meters। ठीक है जी। कैलकुलेट नंबर 1 टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, और एट द टॉप लिख लो, रहने दो हाईएस्ट पॉइंट। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन। तीसरा काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ वे डाउन बेटा। ठीक है जी, समझ आ गया न्यूमेरिकल बेटे? करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आपको दिया हुआ 10 किलोग्राम का, 50 मीटर की हाइट पे पड़ा है। दिस इज टू बी ड्रॉप फ्रॉम दैट हाइट एंड वी इंटेंड टू कैलकुलेट total energy, potential energy and kinetic energy at the given points. Let us see to this beta. This is the object present at the top and this is the height of 50 meters from the ground level. Clear? Mass of the object is beta 10 kg. Let us first of all focus upon the very first part, total energy at the top. पहला पार्ट क्या है? टोटल एनर्जी बेटा टॉप पे कौन सी होगी?
काइनेटिक की पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, यस। क्योंकि टॉप पे तो आप इसको ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, आपने छोड़ा नहीं ना अभी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, एंड मास बेटे कितना है हमारा 10 kg का, g को 10 ले लिया, h को 50 लिया, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 5000 जूल्स हो गया जी, क्लियर हो गया। नाउ यू ड्रॉप दिस ऑब्जेक्ट, ये नीचे आ रहा है, करीब करीब ये आ गया मिडल पे, हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन का मतलब है कि इसका हाइट अब कितना रह गया, 25 मीटर्स, बिल्कुल ठीक बेटे। तो 25 मीटर्स की हाइट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक। ये आगे लग रहा है, अरे चलो बनाना ही है, यहाँ बना लो, ये लो, ठीक है, ये तो अपनी बात ही है इसमें। अरे नहीं नहीं नहीं, जहां मर्जी लिखना ही है, थोड़ा लगना चाहिए। अब जैसे आपको ये कंफ्यूजन हुआ, होना नहीं चाहिए, ठीक। तो ये 25 मीटर की हाइट पे रह गया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन, बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ओए होए, हाफ एम जी नहीं, एम जी एच, सिंपली हाफ नहीं ना लगेगा इसमें, इट विल बी m इंटू जी इंटू एच। एम कितना है, अरे मास में तो कोई चेंज नहीं ना आएगा, मास 10 रहेगा, जी भी 10 नहीं लिया हमने, एच कितना हो गया 25। सो दिस इज 2500 जूल्स आ गया। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी बच्चों, किसका सम, काइनेटिक हमारे पास है ही नहीं, अभी निकाला ही नहीं। गुड गुड, वेरी गुड बेटे। देखो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं, आपको आपको पता है ना कि टोटल एनर्जी 5000 जूल्स के बराबर है, तो हर एक पॉइंट पे एनर्जी तो बराबर ही रहनी है। अब ये मिडल पॉइंट जो था आपका, अगेन जरा देखिएगा, एट द पॉइंट हाफ वे डाउन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपने कितना निकाला 2500 जूल्स। टोटल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आना, वो तो हमारा प्रिंसिपल कहता है। टोटल एनर्जी अवेलेबल विद अस इज 5000 जूल्स, ठीक है। तो आई कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी, बिल्कुल ठीक। एंड काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज 5000 minus 25,000 or it is again 25 well in time, है ना। थैंक यू बेटे ऑल।